Hello and welcome to Dhaba Buzz, our special election show where we bring you local food flavors and what's on the political palette in several regions across small town India. Well, we're coming to you today from Dehradun, from the Chaat Gully, and you can see visuals of the famous Chaat Street in Dehradun. Families, young students all coming out in the evenings, and this is really where along with the tasty and the delicious food, the electoral flavor of the state can also be gauged. Let's get a sense from the young people here. So tell us, what's your sense of the politics of the state? A general question. It's like moreover for us, like the youth over here, we are more excited about the college level elections we do. We try to get our leaders, and that's the way we actually get to know the kind of people we are going to have on the state level. Whereas the state level comes, the youngsters are more excited about it, because we get to see, like we got 18 plus, so we have the right to vote for them. So we are more into like हम अब जो है सोच सकते हैं कि come on, now we are going to think about them, we are going to choose someone, we're going to see what they are doing. So that's the way. Right now, who's into power for more of the our youngsters around is Mr. Harish Rawat, because he's always been in the limelight. So that's the thing. I suppose according to that, if you see the other parties, if they work, it's more something that you do is going to fascinate more to the youngsters. Something you're doing is going to reflect back on us. So you feel in a sense that having a chief minister as a face is important. You feel that the BJP... You get to see that person is around you, see, okay, this is the guy, this is the person we have supported, he's working for us, we're seeing what he's doing for us. So that is the basis on which we are going to elect that person with us. Let's also get a sense from this lady. Ma'am, आप भी देहरादून से हैं? तो यहाँ की जो लोकल राजनीति है, उस पे आपका क्या व्यू है? अगर एक पूछा जाए कि मतलब जिस तरह से राजनीति उत्तराखंड में चल रही है, नेता दल बदल रहे हैं एक दल से दूसरे दल में, आपको क्या लगता है इससे क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप जब वोट देती हैं मतदाता के तौर पे, आप किन किन चीज़ों को देखती हैं? सभी चीजों को देखते हैं, सब चीज देख के देते हैं नेता को, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। और इस बार जिस तरह से कैंपेन बीजेपी और कांग्रेस का हो रहा है, बीजेपी ने तो अभी तक, भाजपा ने तो अपना चीफ मिनिस्टर बताया भी नहीं है कौन होगा, क्या लगता है आप किसका समर्थन कर रही हैं अभी? प्रधानमंत्री का। और क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जैसे जिस तरह से कह रहे हैं कि हम मतलब प्रधानमंत्री के ही नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भाजपा के फेवर में आएगी ये बात? आएगी। मैम, आप बताइए कि जिस तरह से लोकल पॉलिटिक्स है, आप अपने नेता से किन किन चीज़ों पे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है पॉलिटिक्स में? मतलब साफ सुथरी सड़कें, पानी, घर, या क्या इम्पोर्टेंट है आपके? इम्पोर्टेंस तो यही है कि हमें सुविधा मिले, सड़कें मिले अच्छी, पानी मिले, बिजली मिले, जो मतलब आम इंसान की वो होती है ज़रूरतें, वो पूरी होनी चाहिए। बाकी तो और क्या चाहिए हमें जनता उससे, नेता से, बस यही हमारी वो है बस। और जिस तरह से रावत सरकार ने मतलब ये सर्विसेज दी हैं, आपको क्या लगता है खरे उतरे हैं आपके मत के हिसाब से? ऐसा तो कोई भी नेता नहीं है कि जो बिल्कुल ही मतलब वो करता है, बिल्कुल जैसे वो बोलता है वैसे करता है। कुछ ना कुछ तो सब में कमी ही रहती है, थोड़ा थोड़ा, पर ऐसा कि कर ही रहे बस अपनी अपनी तरफ से जो भी। So a series of nuanced views actually coming in from people. Let's also get a sense from some of the ladies who are sitting in the corner. But before that, we should also see these delicious aloo tikkis, lots of chaat, lots of buttered buns that are lying all around. Let's get a sense from the gentleman. भैया, आप कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए? हमारा तो बचपन से हो गया यही काम, हमारे सब बचपन 60 साल हमारे समय से पहले हमारे बड़े करते हैं इस काम को। तो आप कह रहे हैं कि आपका बचपन यहाँ बीता है, तो आपने कई सरकारें देखी होंगी उत्तराखंड में, देहरादून में, तो आप जब मत डालने जाते हैं तो आप किन किन चीज़ों को अपने नेता में देखते हैं? मैं इस बारे में मेरे कुछ ज्ञान नहीं है इस बारे में ज़्यादा। मत डालते हो तो आप मतलब आपके जो है कांग्रेस जो समाज के लिए अच्छा काम करे उस चीज़ को मत देते, जो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो समाज के लिए अच्छा काम करे उसके लिए। इस समय तो आजकल टाइम में तो मोदी की जगह जोर है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। तो इस बार मतलब आपके हिसाब से भाजपा का पलड़ा भारी है या कांग्रेस का? इसी आपको देखते हो भाजपा का पलड़ा भारी है, वैसे इसी चीज जो इस समय के दौरान को देखते हुए भाजपा का है, बाकी आगे पीछे कुछ कह सकते हैं।
पर अगर देखा जाए तो भाजपा ने अपना सीएम का कैंडिडेट अभी नहीं बताया कि कौन होगा, कांग्रेस का रावत है, तो क्या लगता है कि मतदाता के तौर पे अगर पता हो कि चलो सीएम कौन बनेगा ये बेहतर है या फिर प्रधानमंत्री के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए? जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के नाम पे है, विधानसभा के सीएम के उस पर कोई नहीं है। हमारे हिसाब से सीएम कोई भी बने, यहाँ के हिसाब में तो हमारे हिसाब से तो इसने राजकुमार था, उसने काम अच्छा किया है यहाँ पे समाज में, जनता के हिसाब से राजकुमार ने, भले कांग्रेस का है या बीजेपी का हो, कोई भी हो, राजकुमार ने अच्छा काम किया है। Let's also get a sense from some of the ladies here. मैम, आप भी देहरादून से हैं, लोकल सिटी से हैं, जी। तो अगर लोकल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में जो आपसी टक्कर दिख रही है, आपको क्या लगता है? मतलब हमेशा ऐसा आता बना है उत्तराखंड में कि 60-40 चांस रहा है, थोड़े से वोट से एक पार्टी जीत जाती है। इस बार क्या लग रहा है? सर हमें तो लग रहा है कि इस बार भी वही 30-31 वाला ना हो जैसा पिछली बार हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कहा नहीं जा सकता कि, क्योंकि देखिए मोदी जी है हमारे सेंटर में है, तो हो सकता है अब उत्तराखंड की जनता सेंटर के हिसाब से सोचती है या अपने राज्य के हिसाब से सोचती है। ये तो अब जब हम वहाँ पर वोट देने जाते हैं तो उसमें किसका माइंड सेटअप क्या रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान कांग्रेसी है या बीजेपी है या अदर किसी भी पार्टी का है, ये मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता है। उत्तराखंड में कह नहीं सकते हैं हम कि क्या भाजपा या कांग्रेस। नेता ऐसे दल बदलते हैं तो मतदाता के तौर पे आपको क्या लगता है, मतलब विश्वास होता है राजनीति में? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप क्या चाहेंगे कि मतलब जिस तरह से राजनीति हो रही है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? क्या नेताओं को ऐसे पार्टियां बदलनी चाहिए अपनी एक से दूसरे? सर इसमें भी कुछ न कुछ तो ऐसे मतलब ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जैसे और लोगों के लिए, जैसे किसी और कर्मचारी के लिए या किसी के लिए भी नियम होता है कि तुम अरे इस चीज़ में जॉब कर रहे हो या कोई भी चीज़ तो तुम इसमें रहोगे, ऐसी कुछ मतलब हमारी राजनीति में थोड़ा चेंज आना चाहिए। अब ये नहीं कि आज तुम इस पार्टी में चले गए, कल तुम उस पार्टी में चले गए, जहाँ तुम्हें लगा कि वो जीतने वाला है तुम उसकी तरफ हो गए। मतलब ये चीज़ें कम होनी चाहिए। हमारे देश के हित के लिए भी ये चीज़ें सही नहीं है कि मतलब किसी को हमने इस बार कांग्रेस का समझ के वोट दे दिया, वो अगली बार भाजपा में चले गया, या कोई किसी को हमने भाजपा में, मतलब हमें इन चीज़ों से हट के हमें एक अलग राजनीति का निर्माण करने की सोचनी चाहिए। हम मतलब देश की जनता को भी अब आगे आना चाहिए, और हम अपनी चीज़ों के लिए तो आंदोलन करते हैं, हम हड़ताल करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए भी हमें अब आगे आना चाहिए कि ऐसा ना हो। राजनीति से ही, क्योंकि सरकारें बनती हैं सब ये राजनीति से ही तो बनती है। हमारे देश के हर चीज़ का निर्माण, संविधान है, कोई भी चीज़ है, ये सब मतलब ये नेता ही अगर ऐसा करेंगे, इनको ही तो ये सब बनाना है। अगर ये इधर से उधर करेंगे तो इनका खुद ही माइंड सेटअप नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते ना फिर। So very important point actually being mentioned by the lady there, that voters and politicians constantly changing allegiances doesn't really inspire confidence. Let's also get a sense from the lady. आंटी, आप देहरादून से ही हैं, शहर से ही हैं, लोकल हैं? हाँ जी। आंटी, तो ये बताइए कि यहाँ जो राजनीति जिस तरह से हो रही है, जो रावत सरकार है, क्या आपको लगता है कि इस बार सत्ता में आएगी वापस इलेक्शन में? पता नहीं भाई, हम नहीं जानते इस चीज़ को। हम तो पता नहीं भैया। लो, तो जब आप वोट देने जाते हैं, आप वोट जब मत डालने जाती हैं, तो आप किन जो पॉलिटिशियन होता है उसमें क्या गुण आप देखती हैं? या आजकल सारे नेता ऐसे हैं जो मतलब एक समान हैं? एक ही समान है हमारी तरफ से तो। तो जिस तरह से मतलब रावत सरकार के पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड रहा है, लगता है कि वो वापस सत्ता में आएंगे? हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। आप क्या चाहेंगी? हम तो चाहें अच्छी सरकार बने, अच्छी हमारे देश की उन्नति हो, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। So we've got a series of mixed responses coming in from people here. Some saying that it's the Prime Minister who inspires confidence, but a very important point also being that if the larger political meta narrative is one of instability, where the leaders are constantly changing allegiances and moving from one party to another, then what kind of politics is that presaging? And even as we get you visuals of some of the most tasty food, in the city, the comfort food, the food that you'd like to eat on a cold evening. Let's remember, it's pretty cold up in the hills over here. But if we were to sort of deracinate this, from the politics, what kind of aftertaste does the politics leave in one's mouth? That is really the moot question here in Dehradun.
है।